Study Panel. This is Devendra Sijala from Kendriya Vidyalaya Drangadra. In today's video, we shall start a new chapter of 5th EVS and the name of the chapter is Seeds and Seeds. Dear students, if you have not subscribed our channel, please subscribe it and press the bell icon to stay updated. Let us see. Dear students, in last chapter, we have seen how to make Mamidi Tandra. And if you remember, after taking out the pulp from the mango, what will be remaining with us? At that time, we will be having the seed of a mango. So, in this chapter, we are going to discuss about seeds. Let us see. Gopal was waiting for his Mausi's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. Just then, his mother called out, Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small katoris of chana. She was going to his Bua's house and would return only in the morning. See, here Gopal is having a task with him, and what is the task that Gopal has? To soak 2 small katoris of chana before going to the bed. As he was soaking chana, now Gopal is soaking chana. Gopal thought, how will 2 small bowls of this be enough for 8 persons? So he soaked another 2 bowls of chana. When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessel. How much did you soak? Asked his mother. How did that happen? Wondered गोपाल. अब गोपाल ने क्या गलती किया यहाँ पर? उसने सोचा कि 2 छोटी-छोटी कटोरी जो है, छोटे-छोटे बाउल है चने के, वो 8 लोगों के लिए थोड़ी नहीं इनफ होंगे. उसने अपना दिमाग लगा के और 2 बाउल एक्स्ट्रा, यानी टोटल 4 बाउल हो गया, उसको क्या किया? सोक कर दिया. नाउ अब सुबह आके जब गोपाल की मम्मी ने देखा तो सारे जो मतलब चना था वो बाहर आ रहा था बाउल से, वेसल से. अब गोपाल खुद भी कंफ्यूज था कि मैंने तो सिर्फ छोटी छोटी 4 बाउल ही चना जो है वो सोक किया था, तो इतना सारा कैसे भिगोया था, इतना सारा कैसे बाहर आ गया. नाउ सी, यू सोक्ड टू मच. एनीवे, इट इज गुड. Now I will cook half of them and leave the other half to sprout. अब देखो उसने क्या कहा, मतलब गोपाल की जो मम्मी है उसने कहा कि कोई बात नहीं, उसको रहने दो. अब जो उसका आधा जो है उसकी हम लोग जो है उसको कुक कर लेंगे, पका लेंगे, और आधा जो है उसको स्प्राउटिंग के लिए छोड़ देंगे. Now in this chapter we are also going to discuss certain new words like sprouting, what is sprouting, and how it looks after sprouting. I can send these to your aunt. The doctor has told her to eat sprouts, mother said. She tied half of the soaked chana in a wet cloth and hung them to sprout. अब उसने क्या कहा, जो हाफ जो चना थे भिगोए हुए, उन्होंने उसको जो है गीले कपड़े में बांध दिया और स्प्राउटिंग के लिए उसको एक अलग जगह टांग दिया. Let us see. Now we are discuss 1 or 2 points what we have learned. What things are soaked before cooking in your house? Why? आपके घर में कौन कौन सी चीजें जो है वो भिगोई जाती है पकाने से पहले? See, these questions you can ask to your mothers and you will get answer. Let us see. The following things are soaked before cooking. We'll see. Chana, you can see. Moong, this is moong. Dry peas, this is dry peas. Rajma, this is rajma. Soya bean, this is before soaking and after soaking. This is soya bean. Rice, we all have seen it, etc. These things become soft after soaking. See, इसको क्यों जो भिगोया जाता है,
है ना। पानी में क्यों इसको भिगोया जाता है, उसका रीजन क्या है कि ये चीजें जो है सॉफ्ट हो जाती है। सी, अगर आपको पता हो तो रात को जब चना भिगोते हैं तो वो मतलब जो है दांत से उसको चबाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वही चना जब गीला हो जाता है और पानी को सोख लेता है, उस समय जब सुबह उसको हम लोग खाते हैं भिगोया हुआ चना, तो वो हमारे खाने के लिए और सेहत के लिए दोनों के लिए अच्छा होता है और हम फील कर सकते हैं कि ये जो चना है वो सॉफ्ट हो चुका है। दिस मेक्स इट इजियर टू ग्राइंड देम एंड टू कुक देम। उसको पकाने में भी आसानी होती है, कुकर में कम सीटियां लगती है उसकी। दिस हेल्प्स इन सेविंग टाइम एंड एनर्जी। ये आपका समय और जो एनर्जी है दोनों की बचत करता है। Now move to the second question for discussion. What things do you eat after sprouting? How are they sprouted? How much time does it take? Let us see. स्प्राउटिंग के बाद कौन कौन सी चीजें जो होती है, सी दिस इज अ चना, ये देखो ये स्प्राउटिंग हुए है, ठीक है। वी ईट चना, मूंग एटसेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग। मतलब स्प्राउटिंग के बाद जो है इसमें से देखो, अगर इसको अच्छे से हम लोग जमीन के अंदर डाल देंगे तो ये क्या है, उसका जो पौधा भी निकल आएगा चने का। they soaked water they soaked in water overnight. Then the water is drained out and they are kept in a basket or suspended in a cloth so that they can get air. उनको पानी में भिगोया जाता है, बाद में उनको पानी से निकालकर एक बास्केट या एक जो क्लोथ होता है उसमें बांध के उसको रखा जाता है ताकि उनको एयर जो है हवा मिल सके। चना टेक्स अबाउट 36 to 48 hours to sprout. चने का ये रूप जो है वो कब तक हमें मिलता है, 3 से 4 दिन में हमें ये रूप मिलता है। while मूंग टेक्स अबाउट 24 to 36 hours. Here you can see, देखो ये मूंग में से भी वो निकल आया स्प्राउट्स, इसको स्प्राउट्स बोलते हैं, है ना। जो प्लांट का सबसे मतलब जो है सबसे इनिशियल पार्ट होता है, उसके बाद ही सब बनना शुरू होता है, उसके बाद प्लांट ट्री ऐसा सब बनता है, ये सब इनिशियल पार्ट है। Has the doctor or someone you know ever told you to eat sprouts? Why? Many of them who are sick are advised to eat sprouts. Yes, doctor has advised me to eat sprouts because they are very nutritious and it is very good for health. Now here in this chapter we will have a project, and this project you have to do at your home. Now project, plant your seed. Now what all things are required for planting a seed? Let us look at it. Take a clay pot or a tin can with a wide mouth. आप एक क्ले पॉट ले सकते हैं और बड़ा सा टिन का जो कैन होता है उसको भी ले सकते हैं। Make a small hole at the bottom of the can. अगर सपोज ये हमारे पास ये तो गमला है, अगर टीन कैन है तो उस गमले में तो क्या है कि नीचे एक छेद रहता ही है। अगर टीन आपने लिया है टीन कैन, तो उसके नीचे जो है हमें क्या करना है, एक छोटा सा होल बना देना है। फिल योर कैन विथ सॉइल, उसको जो है किससे भर देना है, मिट्टी से भर दीजिए। पुट 4 or 5 seeds of the same kind in the soil and press them gently. किसी भी हम लोग जो चीज खाना वगैरह खाते हैं घर पे, उसके 4 या 5 सीड्स हमें लेने हैं और उसके अंदर रख देने हैं मिट्टी के अंदर और धीरे से उसको दबा देना है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स सच एज, देखो आप कौन कौन से सीड्स यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज मस्टर्ड सीड्स, फेनुग्रिक सीड, सीसम सीड्स एंड कोरिएंडर। मस्टर्ड मीन्स सरसों, फेनुग्रिक मीन्स मेथी एंड सीसम मीन्स तिल एंड कोरिएंडर मीन्स धनिया। इनमें से कोई भी आप सीड यूज कर सकते हैं अपने जो है प्रोजेक्ट के लिए। नाउ व्हाट हैपेंस दैट यू हैव टू राइट इट ओवर हियर, दिस यू नीड टू डू इट एट योर होम। Now here name of the seed, which seed you use, we have taken the name of 4 seeds, so any seed you can take, the date on which you planted them, आपने उनको कौन सी डेट पर प्लांट किया है। The day you observe something coming out of the soil, start the feeling, जैसे ही आपको कुछ 3-4 मतलब जो है दिन के बाद कुछ उसमें से बाहर निकलना शुरू होता है मिट्टी का, तो आपको ये टेबल भरना स्टार्ट करना है। To find the height of a plant, use thread and then to
then measure it on the scale. See, now if you want to find out the height of a plant, here see, you can see this column is the height of the plant. यहाँ पर डेट लिखना है, यहाँ उसका हाइट डेली कितना होता है, किस डेट पे उसका कितना हाइट है, तो उसको मेजर करने के लिए जब प्लांट छोटा रहता है तो हम डायरेक्ट स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक जो छोटा स्केल हमारा होता है 6 इंच का, उससे बड़ा हो जाता है तो फिर उससे नहीं मेजर हो पाता है, लेकिन जब तक वो चल रहा है हम लोग हमारा स्केल यूज करके भी उसको मेजर कर सकते हैं। नंबर ऑफ लीव्स सीन, कितने पत्ते उसमें आए, एनी अदर चेंज, कुछ और चेंज आपको दिख रहा है क्या, तो यहाँ पर लिखना है, वरना ये कॉलम खाली रहेगा। तो ये आप सभी को कंपलसरी करना है। नाउ सी, दिस आई हैव डन फ्रॉम माय ऑब्जर्वेशन, लेट अस सी, फाइंड आउट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। अब प्लांट को मतलब जो है सॉइल से बाहर आने में कितना टाइम लगा, है ना। एक्चुअली ये मैंने खुद भी एक्सपेरिमेंट करके दिखा है, तो मैंने मेरे ऑब्जर्वेशन यहाँ पर नोट किए हैं। एंड लेट अस सी, इट टुक अबाउट अ वीक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, मतलब जो है उस प्लांट को एक वीक, एक सप्ताह लगा मिट्टी से बाहर आने के लिए। वो जो सीड हमने डाला था उसमें से प्लांट निकला। what was the difference in the height of the plant on the first and second day? सी, एवरी डे आपको हाइट भी उसका मेजर करना है एक वीक के बाद, जो प्लांट वहां जर्मिनेट होकर बाहर आता है, तो ठीक है। तो व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट इन द फर्स्ट, ऑन द फर्स्ट एंड ऑन द सेकंड डे? द हाइट इंक्रीज्ड बाय अबाउट हाफ अ सेंटीमीटर, है ना। उसकी जो हाइट है वो हाफ सेंटीमीटर से ज्यादा हो गई थी। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट? कौन से दिन प्लांट की हाइट है वो सबसे ज्यादा बड़ी है? देखो इसके लिए एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं है यहाँ पर 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4, 4 ही ऑप्शंस दिए, आप इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, टेबल को अपने हिसाब से इसको बड़ा कर सकते हैं। ओके, नाउ ऑन द थर्ड डे द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, मतलब जो है उसका तीसरा दिन था, तब सबसे ज्यादा प्लांट की हाइट बढ़ी है। Did new leaves come out of the plant every day? Yes, of course. Yes, new leaves came out of the plant every day. हर दिन नए पत्ते आते थे। Was there any change in the stem of the plant? Yes, there was also change in the stem of plant. The stem became thicker and thicker by each day. मोटा और मोटा उसका stem जो है वो होता जा रहा था। Yes, here you can see, यहाँ पर देखो ये एक सीड है। अब ये सीड जो है यहाँ से ओपन हो जाएगा और ये जो है यहाँ पर देखो उसकी रूट्स नीचे की साइड जाएगी और उसका स्टेम ऊपर की साइड आएगा। धीरे धीरे इसमें पत्ते होने लगेंगे, धीरे धीरे ये जो है बड़ा। यहाँ पर आपको होल करना है, देखो वो जो टिन कैन जो था ना, आपको यहाँ पर उसका होल करना है। गमला होगा तो गमले के अंदर ऑलरेडी होल रहता है, आपको इस तरह एक्सपेरिमेंट करना है। यस, नाउ वी शैल डिस्कस सम मोर पॉइंट्स। व्हिच सीड्स took the most number of days for the stem to come out of the soil? देखो हमने 4 जो सीड्स है वो यूज किए थे, उसमें से सबसे ज्यादा दिन किस स्टेम ने लिए, उसका स्टेम जो है किस सीड ने लिए, जो उसका स्टेम जो है बाहर आने के लिए, जमीन से बाहर आने के लिए? सीड्स ऑफ सीसम, यानी जो तिल का जो था उसने जो है सबसे ज्यादा समय लिया। एंड विच सीड्स took the least days to come out of the soil? Seeds of mustard, यानी सरसों का जो बीज था उसने सबसे कम समय लिया जो है जमीन से बाहर आने के लिए। Did anyone's plant dry up or turn yellow? Why did this happen? See, many a times if they are not getting proper air and sunlight, the plant will not get nourished. It will dry up and it will turn yellowish. Yes, some students' plants dried up or turned yellow. This happened because proper amount of water and air was not provided. देखो हमको प्लांट करने के बाद उसको रेगुलर पानी भी मिलना चाहिए। इतना पानी नहीं मिलना चाहिए कि फिर वो वैसे ही मर जाएगा प्लांट, ज्यादा पानी से भी मर जाएगा, कम पानी से भी मर जाएगा। तो उसको थोड़ा थोड़ा डेली पानी डालते रहना है, दिन में एक बार पानी डालिए। Now here we will discuss something very interesting about plants. Plants which hunt. एक ऐसा प्लांट जो शिकार करता है। There are some plants which trap and eat frogs, insects and even mice. See, this is a plant, we'll also discuss about this plant.
This is a plant which can eat frogs, insects, even mice. चूहों को भी ये खा जाता है. The pitcher plant, it is also known as Nepenthes, is one of such plant. ये जो प्लांट है फीचर प्लांट, उसको नेपेंथिस के नाम से भी जाना जाता है. ये एक ऐसा प्लांट है जो मतलब है फ्रॉग्स, इंसेक्ट और माइस को भी खा जाता है. माइस मीन्स माउस. इट इज अ प्लूरल ऑफ माउस. It is found in Australia, Indonesia, and in Meghalaya in India. In India also, we can find this kind of plant. ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में भी ये प्लांट जो है पाए जाते हैं. इट हैज अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ. ये जो है पिक्चर लाइक, उसका जो शेप रहता है ऐसे सिलेंड्रिकल, और उसका जो है यहाँ पर माउथ भी उसका कवर है एक पत्ते से. एक्चुअल में ये बंद नहीं होता है. ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कोशिकाएं उसकी रहती है, उसके टिश्यूज रहते हैं. तो उससे क्या है, इंसेक्ट वगैरह है ना, दे विल गेट अट्रैक्टेड, और अट्रैक्ट होने के बाद वो इसके अंदर, यहाँ जो है इसकी अंदर वाली साइड जो है ना, चिकना पदार्थ रहता है, और वो फिसल के अंदर चले जाते हैं. और जब अंदर चले जाते हैं फिर वो बाहर आते हैं नहीं, ये प्लांट जो है उनको डाइजेस्ट कर जाता है. द प्लांट हैज a special smell that attracts insects too. और ये अपनी अलग ही खुशबू मतलब उसकी है, वो जो है दूर दूर से जो है इंसेक्ट जो है उनको अट्रैक्ट करता है. when the insect lands on the mouth of the plant and it gets trapped and cannot get out. what a clever way to hunt. एक बार कोई फंस गया तो फिर बाहर जा सकता है नहीं. let us see now so many seeds. How many types of seeds can you collect? Where will you find them? Each of you should try to collect as many different types of seeds as you can. After that, pull all the seed collection together, and now observe these seeds carefully, their shapes, sizes, colors, textures, smoother or rough. The spelling is wrong here. E will come smoother. Make a seed chart to put up in the class. You can start with a table like this. See, this project also you have to do at your home. Now here you need to collect many types of seeds. अलग अलग बहुत सारे सीड्स है, उसको कलेक्ट कीजिए. उसको कलेक्ट करने के बाद उसका कलर कैसा है वो लिखना है, उसका शेप आपको ड्रॉ करना है, और उसका टेक्सचर कैसा है, मतलब स्मूथ है या रफ है, वो हमें यहाँ पर लिखना है. ये एक्टिविटी भी आपको करनी है. Now we have to think and answer this. Did you keep any seed or soft and cumin, zira in your list? Yes, we have also taken any seed and cumin seeds in our list. हमने any seed जो सौंफ होता है खाने के बाद जिसको खाया जाता है, और जीरा होता है जो सब्जी पकाने वगैरह में डाला जाता है. एक्चुअली अगर किसी को नहीं पता है, जीरा जो होता है ना, वो आयुर्वेदिकली इसका बहुत महत्व है. क्या महत्व है? अगर किसी को एसिडिटी वगैरह भी होती है ना, तो कच्चा जीरा लेना है, थोड़ा अपनी हथेली में थोड़ा ले लीजिए और उसको चबा जाइए, अच्छे से चबाकर उसके ऊपर पानी पीने से आपके एसिडिटी में बहुत अच्छा हो जाएगा. देसी इलाज है, आयुर्वेद में लिखा हुआ है. तो ये दोनों भी हमने हमारी लिस्ट में लिया है. विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन? हमारे कलेक्शन में जो हमने मतलब अलग अलग अभी हम लोग एक्टिविटी करेंगे, तो आप करेंगे तो आपको पता करना है कि सबसे छोटा सीड कौन सा है, सबसे बड़ा सीड कौन सा है. cumin seed was the smallest and the mango was the largest seed in my collection. मैंगो का जो अंदर का वो गुठली निकलता है ना, वो उसका सीड है ना. yes. now you have to also make a list of the seeds that are used as spices in your home. आपके घर में मसाले की तरह कौन कौन सी seeds use होते हैं. you can discuss with your mother to get the answers of these questions. now see, cumin, mustard and any seeds are used as spices in our home. सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स के कौन कौन से सीड्स आपने देखे हुए हैं? लेडी फिंगर्स, टोमेटो, कुकुम्बर, इन सब के सीड्स हम लोग अक्सर देखते हैं. सीड्स ऑफ फ्रूट्स, कौन कौन से फ्रूट्स में हमें सीड्स दिखते हैं? एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, एप्पल इज रिपीटेड, एटसेट्रा. लाइट सीड्स, हल्के मतलब जिसको हम लोग जो है चेक बाय ब्लोइंग देम, उसको हाथ में रख के अगर फूंक मारेंगे तो उड़ जाएंगे, वैसे हल्के सीड्स कौन कौन से हैं? क्यूमिन सीड्स एंड एनी सीड. सीड्स विच आर फ्लैट सीड्स कौन से रहते हैं? राजमा, एप्पल, क्यूमिन, एनी सीड मीन सौंफ,
एंड सीसम। ये जो है हमारे सीड्स जो है वो फ्लैट रहते हैं। नाउ यू हैव टू आल्सो मेक मोर ग्रुप्स। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक? आपने कितने ग्रुप्स बनाए हैं? सी सीड्स कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलो। उसके बहुत सारे होते हैं। एक तो एडिबल सीड्स होते हैं, यानी खाने लायक, खा सकते हैं। कुछ सीड्स हम लोग नहीं खा सकते, जैसे तरबूज के बीज होते हैं, है ना, वाटरमेलन के, वो ज्यादातर लोग तरबूज खाते वक्त खा जाते हैं, एडिबल है तो वो नुकसान भी नहीं करता है ना, तो उनको हम लोग नहीं, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनको हम खा नहीं सकते, उनका इस तरह से भी क्लासिफाई किया जाता है। सीड्स विच गिव ऑयल, यानी ऐसे कौन कौन से सीड्स है जो ऑयल देते हैं, जिसमें से ऑयल निकाला जाता है। सीड्स यूज्ड एज अ स्पाइसेस, मतलब खाने में यूज करते हैं वैसे सीड्स। सीड्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, यानी पानी के ऊपर जो तैर सकते हैं वैसे वाले, जो तैर नहीं सकते हैं। सीड्स सिंकिंग इन वाटर, मतलब जो तैर नहीं सकते वैसे। वेरी स्मॉल सीड्स एंड वेरी बिग सीड्स, ये सारे अलग अलग टाइप के सीड्स रहते हैं। नाउ वी विल एंड दिस वीडियो एंड लिसन, डोंट फॉरगेट टू complete the project. You have to also send me the photographs for that project. Thank you. See you again.